जीवन शैली बनाने में तकलीफ नहीं होगी। तो इन्हीं सारी जानकारियों को अपने जीवन में समाहित करें, तो कैंसर जो से आप काफ़ी हद तक बचने में कामयाब होते हैं। और अगर मान लीजिए हो भी जाता है 1%, तो भी अगर आपने उसके प्रति सजग रहे, तो आप इसको जल्दी पकड़ सकते हैं और इलाज फिर उस केस में ठीक होना यानी क्योर संभव है। तो इसके साथ ही मेरा प्रेज़ेंटेशन यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों का कुछ भी अगर क्वेश्चन है तो मैं तैयार हूँ उसका जवाब देने के लिए। जी May सर। I speak, ma'am? Yes, please. Okay, my name is Lata Dhru. I'm from Gujarat State. Yes, Lata ji. Okay, my daughter, when she was 12, she used to have a lot of worm infection. Okay, after that, I keep on repeating, showing to the doctors, but they just keep on giving the medicine for worms. After that, a few months later, her stomach started to grow, just like pregnancy. Okay, then I again showed, then only he told me to go and see the gynec. I went and it was found that she had cancer. Okay, then she had to go for the op, and then she did again. After that, the doctor gave the medicine, said everything's okay, nothing to be done. So I would live just as normal life. Then after interval of 15 years, she again had it. She again had it, but since we had the first one, so she had a little one, same thing, same problem. Okay, then again showed, and again her ovaries had to be taken out. Okay, now she has no ovaries. Means I think it is called the hysterectomy, something like that. Hysterectomy. Yes. Okay. So what I want to know now is the period that again she had it was very long. So now everything is done. Now she's again health. Now after the operation, she is so much healthier. So am I supposed to be scared also? Will it recur again? Or what am I supposed to do for her checkup? Because the doctor told me nothing. So just after I did for after the operation, I did go for checkup. After that, she told me it's okay. So now I'm not going for checkup, but the fear is there. I'm so scared it will occur again. So what can I do, or whom can I go again? Just just to make sure that everything's okay. First of all, I'm really sorry, Lataji, that you and your daughter had to undergo this kind of an unfortunate event. Thank you. But on the contrary, I'm also happy to hear that now she's fine after going through two surgeries. So because there has been an interval of around 15 years, so and I don't know the details, but what I can estimate is that probably it was a benign tumor that she had, and probably the second time also it has been a benign tumor. And I hope you have shown your daughter to a specialist. Is it a cancer specialist? Sorry? Oncologist. Yes. She So was in oncology, cancer oncologist in Ahmedabad, and they said it was malignant. it was malignant. Yes, So you will have to keep on following up. Because even in benign tumors, we do call for follow up. And even if the doctor has not said that, you have to take the initiative of going at least, what has been the duration since the last surgery? Duration about 2 years, ma'am. Now it's been 2 years, so at least every 6 months you have to go. And once she crosses 5 years, then you have to go every year, once a year at least, if everything is fine with her. And if there are any problems at any point of time, you have to go immediately. Okay, and what type of problem am I supposed to see? So this will be now because her ovaries are not there. So there won't be any problems related to the ovaries or hormonal problems, but she would be having certain weight problems as repeated flatulency, a lot of gas, abdominal distension, sometimes off and on pain. These are the kinds of things that she might have. But that is the reason that I'm saying that you please follow up at least after every 6 months, now that it's been already 2 years. Because initially after the surgery she should have been called every 3 months at least.
That we went for 4 times, ma'am. Yes. That, So now it has to be once every 6 months till 5 years. And after 5 years, it has to be every year. oh, I see. Oh, Yes, okay. please. So Thank you. please And do then, not give up on follow-ups. Follow-up is a very, very important aspect of cancer treatment. I see. Okay. And are there any special hospital that, okay, at the moment I'm not saying, I think for follow-up I can afford it because for the operation it is very high for me. So follow-up, are there any special hospital that is only doing consultancy in Gujarat? No, ma'am, I would really suggest that you follow up with the doctor who has treated her. Okay. That Thank is you the so much, best. ma'am. Okay. Yes, Okay. Thank you, ma'am. no Thank you. problem. My best wishes to you. Thank you. So I have some, मुझे कुछ questions मिले हैं यहाँ chat में भी. सर मैं उनका जवाब दे देती हूँ. एक मुझे मिला है कि फिजियोलॉजी अल्कोहल और टोबैको की क्या है जिसकी वजह से कि कैंसर होता है. सुभाष जी ने पूछा है. सुभाष जी, जो टोबैको होता है जब आपके उसके अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, फिनाइल कंपाउंड्स और ऐसे कंपाउंड्स जो कि टॉक्सिक होते हैं, कार्सिनोजेनिक होते हैं. जब ये सेल्स जब ये शरीर में एब्जॉर्ब होता है और ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है, तो जो सेल का जब डिवीजन हो रहा होता है, यानी सेल्स जब एक कहते हैं ना मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, उस लेवल पे जाके वो अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कैंसर में वो तब्दील हो सकता है. और यही चीज़ अल्कोहल के साथ भी है. जब अल्कोहल लिवर में सीधे जाता है और एब्जॉर्ब होने के बाद, और उसके बाद जिन कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट होता है, वो आपकी बॉडी के लिए या वहाँ के आसपास, अब जैसे कि अल्कोहल आपने लिया और शराब का सेवन किया आपने, वो आपके नली से जो कहते हैं ना ग्रास नली से होता हुआ पेट में जाता है, तो उसके टच में आ रहा है. वहाँ पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब होता है और वहीं लोकली ही सेल्स को एक तो इरिटेट करता है, कहीं-कहीं इरिटेशन रहता है, कौन कहते हैं ना थोड़ा-थोड़ा कहीं पे अगर आपको किसी घाव पे अगर खोदते रहें, तो वो घाव तो कभी ठीक ही नहीं होगा. तो इसी तरीके से अगर कहीं कुछ घाव है और आप शराब के सेवन की वजह से हुआ है और वो घाव आप रोज़ उसका सेवन कर रहे हैं, वो कभी ठीक हो ही नहीं रहा, तो वो इरिटेंट की तरह काम करता है. दूसरा होता है कि वो एब्ज़ॉर्ब होने के बाद शरीर में कुछ ऐसे कंपाउंड्स में चेंज होता है, जो कि सेलुलर लेवल पे जाके इफ़ेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये कैंसर होता है. तो यही फिज़ियोलॉजिकल रीज़न्स हैं, जिसकी वजह से कि कैंसर हो सकता है. हाँ. ओपन. कोई और सवाल है? जब तक कोई और सवाल पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि फिलहाल मैं ब्रेन बिहेवियर रिसर्च फाउंडेशन ऑफ इंडिया का को हेड कर रही हूँ एज़ अ चेयरपर्सन. और ये जो हमारी संस्था है, ये मानसिक जो समस्याएँ हैं उनमें काम करती है, समाज के हित के लिए काम करती है. और साथ ही साथ एक हमारे पास टेक्नीक है 4D ब्रेन एनालिसिस, जिससे कि जो इंसान जो भी इंडिविजुअल है उसके जो आपकी नेचुरल क्षमता है, इनबॉर्न टैलेंट है, उसको साइंटिफिकली या वैज्ञानिक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं हम, जिसमें कि डीएनए एनालिसिस, ईईजी या फंक्शनल एमआरआई, बायोलॉजिकल और कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं. तो ये 4 टेस्ट करते हैं और बिल्कुल सेफ हैं ये टेस्ट. इनको करने के बाद हम एक रिपोर्ट बनाते हैं और इस रिपोर्ट को फिर हम जो भी बच्चा आता है हमारे पास, जैसे हम ज़्यादातर फ़ोकस करते हैं कि जो 8वीं, 9वीं, 10वीं और ऑनवर्ड्स बच्चे हैं जो अपना करियर डिसाइड करते हैं. तो कई बच्चे ऐसे हैं जो कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन-सा करियर लें, कौन-सा नहीं लें. तो ऐसे बच्चों के लिए हमारी जो तकनीक है वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुई है. अभी तक हमें 6 साल हो गए हैं इसको करते हुए. हमने कभी भी इसका बहुत एक्टिव मार्केटिंग करने की कोशिश नहीं की है, क्योंकि हम ये चाह रहे थे कि इसको हम पहले पूरी तरीके से पक्का कर लें और उसके बाद ही इसको हम कहते हैं ना इसकी मार्केटिंग करें, क्योंकि मार्केटिंग में इन्फॉर्मेशन थोड़ा अलग तरीके से जाता है. तो www.bbrfi.org हमारे संस्था का वेबसाइट है. उस पे आप और जानकारी जाके ले सकते हैं इसके बारे में. थोड़ी-सी प्रक्रिया का एक वीडियो भी उसमें दिया हुआ है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है, जिसको आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो मानसिक स्वास्थ्य है या तरह बीमारियाँ हैं उसके बारे में तरह-तरह की जानकारियाँ भी उस यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं. तो और भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं?
तो मैं प्रोफेसर सक्सेना साहब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने कमेंट्स दें और कुछ अपनी बात कहें। प्रोफेसर सक्सेना। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, सारी बातें उन्होंने टच की बहुत अच्छी तरह से, और बहुत एक्सपर्ट ओपिनियन भी इनकी है। और मैं इसमें थोड़ा सा एक चीज अपना ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा, वो ये है कि हम लोगों ने जब बीए ज्वाइन किया था 1952 में, तो साइकोसोमेटिक और सोमेटोफॉर्म दो तरह के डिसऑर्डर्स बताए जाते थे। कैंसर की कोई साइकोसोमेटिक एविडेंस नहीं है, लेकिन साइको आई मीन सोमेटो लेड साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। और इस संबंध में हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। हाँ, कोई बीच में बोल रहा था, मैं समझा शायद मैं ऑडिबल नहीं हूँ। एनीवे, तो बिहेवियरल ऑन्कोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बिहेवियरल ऑन्कोलॉजी जो है वो खास तौर पर यानी पेशेंट को, और इसमें बिहेवियर ऑन्कोलॉजी का मैं नटशेल कह सकता हूँ कि इसका एम है इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व पे आना। जैसे ही पता चलता है किसी को कि उसको कैंसर है, तो उसका स्ट्रेस लेवल एकदम से ऊपर जाता है, फिर थोड़ा सा रिकंसाइल करता है, वो प्लेटो आता है, और बाद में अगर बिहेवियर ऑन्कोलॉजिकल इंटरवेंशन अच्छे होते हैं तो कर्व नीचे भी आ सकती है। तो इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व बनाना बिहेवियरल ऑन्कोलॉजी का एक एम है। डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छी तरह से ये बताया। ये इन्होंने सिम्टम्स भी बताए, वार्निंग सिग्नल्स भी बताए हैं। मैं ये भी जानना चाहूँ कुछ क्या ऐसे वार्निंग सिग्नल्स हैं जो कि दूसरे लोग ऑब्जर्व करें, जैसे बहुत से एलिमेंट्स में होता है वार्निंग सिग्नल्स होते हैं इस तरह के जो दूसरे लोग ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। ये तो मैडम ने जो वार्निंग सिग्नल्स बताए हैं वो स्वयं वो फील करता है, लेकिन दूसरे लोग उसके किसी बिहेवियर में कोई ऐसे चेंजेस होते हैं क्या, ये मैं जानना चाहूँगा। और मेरा एक ऑब्जर्वेशन इसमें और है कि इंसिडेंटली मेरे अंडर में एक पीएचडी, रामलाल जी आप जानते हैं डॉक्टर मधु सेठ को, उन्होंने मेरे अंडर में पीएचडी की थी। वो ये थी कि कैंसर और कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर के ऑनसेट के बाद क्या साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। वो 1975 में 76 पीएचडी हुई थी मेरे अंडर में। तो उसमें भी बहुत सी चीजें ये हैं कि क्योंकि अगर कैंसर थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज में पहुंच गया तो साइकोलॉजिस्ट का एक ये रोल होता है, या बिहेवियर ऑन्कोलॉजिस्ट का खास तौर पर रोल होता है कि उसके जो बाद का जीवन है उसको खुशहाल बनाए, उसको हैप्पी बनाए। और आपने जो बहुत से टिप्स दिए हैं वो कम्युनिटी साइकोलॉजी के लिए बहुत यूजफुल है कि हम ये अवेयरनेस कम्युनिटी में फैला सकते हैं। और अगर कम्युनिटी साइकोलॉजी और कम्युनिटी मेडिसिन का अगर तालमेल हो जाए तो नथिंग लाइक दैट। तो ये मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है, और डॉक्टर मिश्रा ने बहुत अच्छी बातें कही, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कम्युनिटी साइकोलॉजी सेशन की ओर से। और मैंने जो कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, अगर उसमें उनका कुछ कमेंट मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं बिल्कुल आपने ये भी कहा कि दूसरे लोग देख सकते हैं कि नहीं, तो 2 ऐसे कैंसर्स हैं। एक का मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए गले में आपकी आवाज़ चेंज होती है, तो अक्सर दूसरे ही आपको बताते हैं कि आपकी आवाज़ में कुछ बदलाव है। और जहाँ अगर ब्रेन ट्यूमर्स होता है, तो ब्रेन ट्यूमर्स में ही लोग देखेंगे कि कभी-कभी बिहेवियर चेंज हो जाता है। और ये जो आपके साथ रह रहे हैं ना, वो बहुत इंटेंटली देख के बता सकते हैं कि आपके बिहेवियरल कुछ फैक्टर्स हैं, और उसके लिए आपको वहाँ पे डॉक्टर को दिखाना है, और फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया होती है कि कैसे वो डॉक्टर आपका आगे इन्वेस्टिगेशन करवाता है। तो कई बार ये देखा गया है कि ब्रेन ट्यूमर निकल के आता है। तो यहाँ पे ये मैं बोलना चाहूँगी कि डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिहेवियरल चेंजेस कभी बिनाइन भी होते हैं, यानी ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ कैंसर ही हो।
बट कहने का मतलब ये है कि उस सजगता बहुत ज़रूरी है, इसका सही समय पे ओपिनियन लेना बहुत ज़रूरी है। एक और क्वेश्चन आ रहा था सुभाष जी का एक और क्वेश्चन था कि योगा कैसे हेल्प कर सकता है? और सर सक्सेना सर आपने जो बोला कि कुछ बीमारियों की कैंसर की वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सर मेरा जो कहते हैं ना ये इस फील्ड में आने का मेन एम ये है कि मैं ये मेरा एम है लॉन्ग टर्म की ये सजगता जो हमारे यहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट हैं उनको ये देना कि साइकोलॉजी इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैंसर। ये मैं जब से ट्रेनिंग में थी सर टाटा मेमोरियल में मैंने ट्रेनिंग की है तब से मेरे दिमाग में है कि एक जो हम पेशेंट को ट्रीट करते हैं ना उसकी साइकोलॉजी को ट्रीट करना भी साथ में बहुत ज़रूरी है और पेशेंट के साथ साथ जो उसका संबंधी आते हैं ना जो उसके देखभाल करते हैं उनको भी हैंडल करना हमें साइकोलॉजिकली बहुत ज़रूरी है तभी हम सारे हमारे आउटकम्स और अच्छे आएंगे बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डॉक्टर्स की कमी और संसाधनों की कमी कह लीजिए जिसकी वजह से हम प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पा रहे हैं कि इसको जो आज मैं बात आपको कह रही हूँ इसको अगर मैं डेटा के साथ देती तो ये मेरे कहते हैं ना और ज़्यादा इफेक्टिव होता तो इस तरह की कुछ जांचें या कहते हैं अनुसंधान आगे आने वाले समय में हो और मेरा ये प्रयास है कि डॉक्टर्स को ये बात समझाई जाए खासकर ऑन्कोलॉजिस्ट जो मेरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको ये बात समझाई जाए कि ऑन्कोलॉजी को साइकोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा अगर आप एक अच्छा ट्रीटमेंट कैंसर का चाहते हैं तो क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट होता है लंबे समय तक चलता है इसलिए साइकोलॉजी तो अफेक्ट होनी ही होनी है और दूसरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपने कहा कि साइकोलॉजी ऑल्टर होने की वजह से भी कैंसर होता है एंड दिस इज प्रूवन देर आर स्टडीज यू विल फाइंड कि बहुत ऐसी स्टडीज हैं कि जो लंबे समय तक क्रॉनिकली डिप्रेस्ड लोग होते हैं उनमें कैंसर इंसिडेंस ज्यादा पाया जाता है बिकॉज इनडायरेक्टली अफेक्ट्स द इम्यून सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम अगर आपका इफेक्टिव नहीं है तो आपको कैंसर भी होगा आफ्टर मे बी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब कहते हैं ना आपके शरीर की शक्ति सहन शक्ति खत्म होगी देन अल्टीमेटली इट विल बर्स्ट तो इट इज बोथ वेज इट वर्क्स इट विल कॉज कैंसर एंड बिकॉज ऑफ कैंसर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर डेफिनेटली कॉज थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स सर थैंक यू और योगा इस तरीके से सुभाष जी का भी आंसर मैंने दे दिया इस तरीके से अपने मानसिक कहते हैं ना विचारों को कंट्रोल करना और अपने आप को शांत रखना डिस्ट्रेस रखना इससे योगा से ये होता है और इसमें भी सब कुछ और ये सब जो चीजें मैं बोल रही हूँ ऑल हैज गॉट साइंटिफिक बैकिंग नाउ एंड दैट इज व्हाई इसलिए मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोल पा रही हूँ कि इन सारी चीजों का असर होता है और योगा भी इसलिए हेल्प करता है आपके ये क्या बोलते हैं आपके दिमागी संतुलन को बनाए रखने में क्योंकि ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो ज्यादा नुकसानदेह होता है मैडम मेरा एक क्वेश्चन है जी सर हेलो जी सर ये ब्रेन ट्यूमर्स की संख्या बढ़ती जा रही है लोगों में आखिर इसका मेन रीजन क्या है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखा जा रहा है ब्रेन ट्यूमर और वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जो मैलिग्नेंट हो जाता है और कुछ ही महीने के अंदर वो उनकी डेथ हो जाती है तो ये ब्रेन ट्यूमर इस तरह से क्यों बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कुछ इस पर पता ना चले सर यही बात है कि जो मोबाइल फोन्स आए हैं इनके ऊपर स्टडीज तो चल रही हैं लेकिन कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं आया है कि मोबाइल की वजह से ब्रेन ट्यूमर्स बढ़ रहे हैं ये देखा गया है कि बच्चों में ज़रूर इसका ज़्यादा फर्क पड़ता है बट आई एम श्योर एडल्ट्स आर ऑल्सो बीइंग अफेक्टेड क्योंकि अब हर तरह के रेडिएशन से घिरे हुए हैं ये एक कारण है दूसरा बहुत बड़ा कारण सर यही है जेनेटिक क्योंकि जो स्टेज 4 ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं ये काफ़ी मैलिग्नेंट और ख़तरनाक होते हैं कि इसमें सर्वाइवल अच्छा नहीं होता सारा कुछ करने के बावजूद तो जो हमारी एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज सर इम्यूनिटी एंड हेल्दी लाइफस्टाइल जितना आप अपना आहार और अपना आचरण इन द सेंस कि डेली आचरण जो आपके हैं उनको आप ठीक संतुलित जीवन शैली अपना सके हमारे हाथ में सर उतना ही है Ma'am, one question, please. Yes, ma'am. May I just one question? After that, I will not type. Sorry. Like I told you about my daughter, is it safe to get her married?
Well, ma'am, if she's fine, the only thing I would suggest is that one, it'll be difficult for her to bear children of her own, and the other thing is you will have to, tell the groom side about her real whatever her problem has been. No, what I They should mean not is be this involved. I already know, ma'am. This I already Yes. accepted. Even I already explained to her. What I Hmm. mean is, will she have problems in her body if she gets married? There will be physical interaction in marriage, right? I think I'm getting your point. Yes. That should not be the case. That Okay. should not be the case. And for that she has to keep herself physically fit. Uh, as in she has to do exercises, toning exercises, and all of that. But apart from that, I don't think so that she should be facing any Okay. You problem. answered my question. Thank you so much. Yeah. You're welcome. मैडम एक मिसकॉन्सेप्शन है या क्या है कि लोग कहते हैं कि अगर कैंसर वाले स्थान में बायोप्सी करा दी जाए या उसकी सर्जरी करा दी जाए तो वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है और आदमी की लॉन्गेविटी कम हो जाती है। क्या इस तरह का यह एक मिसकॉन्सेप्शन है या वास्तव में कुछ ऐसी चीजें हैं? सर, ये पार्टली करेक्ट है कुछ केसेस में, जैसे गॉल ब्लैडर कैंसर होता है उसमें बहुत सावधानी से एक विशेषज्ञ के द्वारा ही बायोप्सी होना चाहिए, क्योंकि उसमें ये देखा गया है, और खासकर लैप्रोस्कोपिक अगर गॉल ब्लैडर कैंसर का करते हैं तो उनमें देखा गया है कि जिस ट्रैक से उस दूरबीन को बाहर निकाला जाता है उसमें फिर पाया जाता है। तो इसके अलावा बाकी जगहों पर ऐसा नहीं है। कहीं पे कहीं कहते हैं ना, विशेषज्ञ अगर उसको करता है तो उसको पता है कैसे करना है, और कोई ऐसा मतलब कहते हैं ना साधारण सर्जन जिसको कि ट्रेनिंग नहीं मिली है कि कैंसर वाले पेशेंट्स की सर्जरी कैसे करनी चाहिए, तो उन केसेस में इस तरह के सीडिंग होने के कई चांसेस हो सकते हैं। तो ये पार्टली सही है, अगर आप एक्सपर्ट हैंड्स में हैं तो नहीं, आप नॉन एक्सपर्ट हैंड्स में हैं तो ऑफ कोर्स चांसेस हैं, बट हर कैंसर के लिए नहीं, ओनली फॉर लिमिटेड कैंसर। पर तेजी से नहीं बढ़ता सर, ये भी आपको बोलना चाहूंगी, तेजी से नहीं बढ़ता है। ये कहते हैं ना कि वो जो निकालते समय किसी रास्ते में कहीं पे एक आध सेल अगर रह गया तो उसके चांसेस होते हैं कि वो वहां पे एक नया कैंसर बना ले। बट ये आप ये कहना कि वहां पे मैं बायोप्सी करवाऊंगी तो वो और दुगने साइज का हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता है। और कोई मेरे बंधु कुछ पूछना चाहते हैं? डॉक्टर नंदा, डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम भुवनेश्वर? सर, डॉक्टर उषा स्थाना राय? जी ने पूछा है, डज मेंटल स्ट्रेस लीड टू कैंसर? जी मैम, अभी मैंने बताया है कि जो क्रॉनिक डिप्रेशन वाले लोग होते हैं या मेंटल लॉन्ग टर्म मेंटल इलनेसेस वाले लोग होते हैं उनमें कैंसर ज्यादा पाए जाते हैं, ये इट्स प्रूवन। और कोई ऑडियंस, कोई क्वेरी? क्योंकि वाइंड अप करने के पहले, थैंक्स के पहले आप सबको एक अवसर है कि आप अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। और यह इट इज ए रेयर चांस फॉर अस दैट डॉक्टर मिश्रा इज हियर। तो अगर आपको और कोई उत्सुकता हो, जानना चाहते हो, तो आप पूछ लें, अन्यथा वी विल वाइंड अप द सेशन आफ्टर गिविंग द वोट ऑफ थैंक्स। चलिए, लगता है कोई प्रश्न नहीं है। मैं डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी, जो कि मैं कहूँगा कि इनिशिएटिव उनका था, उन्होंने ही डॉक्टर मीना मिश्रा जी हम लोगों के बीच में वो ले आई, और उन्होंने ही यह बात रखी कि एक अच्छे ऑन्कोलॉजिस्ट को हम इस सेकंड सैटरडे को प्रस्तुत करेंगे, और डॉक्स नियर मी के पदाधिकारियों में से भी हैं वो। इस तरह से पूरा सपोर्ट उन्होंने दिया इस पूरे प्रोग्राम के लिए, और मैं चाहूँगा कि वे डॉक्स नियर मी की तरफ से वो वोट ऑफ थैंक्स देने का कष्ट करें। डॉक्टर कुमुद श्रीवास्तव जी। नमस्ते सर। सर, इसमें कोई कष्ट की बात नहीं है। एंड दिस आवर प्लेजर, ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए प्लेजर है कि आज उसमें एक मीनाकारी हो गई, एक गहना उसमें आज जड़ गया। मीना का यही अर्थ देखती हूँ मैं,
और मैडम से मुलाकात तो ऑनलाइन ही हुई है, वर्चुअल मुलाकात हुई है, डॉक्यूमेंट के प्लेटफॉर्म से हुई है। और उस समय भी और आज भी कैंसर जैसी भयानक डरावनी बीमारी को जितनी सरलता से मैडम ने एक्सप्लेन किया है, और एक-एक शब्द जिसमें कि एकदम जिसको कहना चाहिए कि सोच-सोच के मीनाकारी की गई है। इतना बढ़िया प्रेज़ेंटेशन था, सबको हर एक लेवल पे सब कुछ कंप्लीट जानकारी मिली और सबने उस चीज़ को समझा। और इसके लिए हमारी एसोसिएशन की तरफ से, डॉक्स आर्मी की तरफ से जितना भी थैंक यू कहा जाए कम है। इसके अलावा एक चीज़ और, उनके जितनी मेरी उनसे मुलाकात है, क्योंकि उनका एक पीडियाट्रिक हेल्थ पे भी हमारे पास में एक उनका वीडियो आया और उनसे फ़ोन पे 2-3 बार बात हुई, उनके साथ में मैंने पैनल डिस्कशन किया कि एक उनका एक सहज और सरल व्यक्तित्व भी है कि आप उनसे कितनी बार कोई भी क्वेश्चन पूछ लें, कितने सारे मतलब अपने मिसकंसेप्शन और डाउट्स और मिथ के साथ में, यानी कि बेवकूफ़ी वाली बातों के साथ भी अगर हम मैडम से कोई क्वेरी रखते हैं, तो वो उतनी ही खूबसूरती से मैडम उतनी ही सरलता से जवाब देती हैं। और मेरे ख़्याल से आपके पेशेंट्स जो हैं, वो आपके पेशेंट्स ही नहीं होंगे, आपके फ़ैन भी होंगे, क्योंकि आप उनको कभी डराती ही नहीं होंगी। एकदम उनको आप कंसोल कर देती होंगी, और शायद इसका रीज़न जो है वो यही है कि एक तो आपने वो साइकोलॉजी को जाना है। और बैकग्राउंड की एक और बात भी मैडम मैं डिस्क्लोज़ करना चाहूँगी कि डॉक्टर आलोक मिश्रा की वाइफ़ हैं आप, जो कि एक अपने आप में साइकोलॉजी की फ़ील्ड में अपने आप में एक जाना-माना नाम है। और तो इसलिए ये आज का लेक्चर हम सबके लिए नए साल की बहुत अच्छी सौगात जैसा हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत वेल एक्सप्लेन्ड थी, वेल डिफाइन्ड थी, वेल प्रेज़ेंटेड थी। इसके अलावा एक चीज़ और भी यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगी कि मैडम साइकोलॉजी कम्युनिटी साइकोलॉजी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से, और मैं अपनी तरफ से पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम सब तैयार हैं कि अगर आपके पेशेंट्स को या उनके केयरगिवर को, यस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ केयरगिवर, उनको किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग या हेल्प की ज़रूरत हो, तो वी आर रेडी फॉर दैट। और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि हम टीम वर्किंग के साथ में चलें। बाकी तो और जो हमारे एक्सपर्ट थे, सक्सेना सर थे, रामजी सर थे, सबने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दी है। आपका एक्सीलेंट एक्सपर्ट प्रेजेंटेशन रहा है। इट्स वंडरफुल टू अटेंड ऑल दिस लेक्चर। तो थैंक यू सो वेरी मच। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर कुमुद जी। वेरी गुड। और एक बार फिर मैं एसोसिएशन की तरफ से मैं डॉक्टर मीना मिश्रा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार प्रदर्शित करना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक इस तरह के महत्वपूर्ण मुद्दे को इतने सरल ढंग से प्रस्तुत किया। और इसमें सभी प्रतिभागी हमारे जो हैं, ये प्रतिभागी ये हैं जो इसमें अधिकांश ऐसे हैं जो 10 जुलाई से और आज तक वो रेगुलर वो हमारे सहभागी रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं अपनी उपस्थिति से। तो मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और मैडम मिश्रा का तो बहुत विशेष रूप से आभारी हूँ। और जैसा कुमुद जी ने भी कहा कि हम लोग तो कम्युनिटी इंटरवेंशन प्रोग्राम को लेकर के निकल चले हैं। अगर हम इस एरिया में भी कोई इंटरवेंशन प्रोग्राम चला सकते हो, चलाने की योजना हो, जिसमें अगर हम लोग कहीं कुछ आपको सहयोग प्रदान कर सकते हो, तो हमें प्रसन्नता होगी, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, बहुत लंबी चौड़ी टीम है, जो कि वो हर प्रकार से वह सहयोग करने के लिए तैयार है। इन शब्दों के साथ एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू ऑल। प्रोफेसर सक्सेना साहब तो हमारे एसोसिएशन के पैटर्न हैं और इनके ही निर्देशन में हम लोग जो है वो सब चला रहे हैं और आपका गाइडेंस हमको मिलता रहा है। और अब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई ऐसा लेक्चर हुआ हो जिसमें प्रोफेसर सक्सेना का एक्सपर्ट कमेंट न मिला हो, तो उनको हम विशेष रूप से आभार प्रदर्शित करना चाहेंगे। और डॉक्टर कुमुद जी पर डॉक्टर सक्सेना का प्रभाव इसलिए है कि डॉक्टर कुमुद जी उनकी स्टूडेंट रही हैं, तो वह गुण कुछ इनमें भी आ गया है और ये भी आगे बढ़ करके कुछ साइकोलॉजी के फील्ड में कुछ काम कर रही हैं, जो प्रशंसनीय है। मैं इन शब्दों के साथ आप सभी लोगों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।
नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू।